Hello guys, good morning. Today we see the next topic in this chapter, Systematics and Living Organism in a point 5 kingdom system of classification. Yesterday we discussed about the kingdom Monera. Now in that the Monera general characteristic features we discussed in the audio video lecture is there, and the next one is in them there is a two major types are there in the kingdom Monera that actually we explain in the X recorder. I already sent that lecture to your class. Now here the next kingdom is the kingdom Protista. अब ये दूसरा वाला किंगडम है अपना 5 किंगडम में से प्रोटिस्टा. What about this the kingdom Protista? Now as you see the features of that the protist are, I told you the general features about protist, but the protist they follow the characteristic features of all groups, all other highly evolved groups of the kingdom like Plantae, fungi and animalia. So we see one by one of them again, but before that we see the major characteristic features of the kingdom Protista. Now as per the evolutionary sequence, as we know, the first term cell in the evolution is the prokaryotic unicellular structure is there that completely belongs to the kingdom Monera. उसमें क्या है वो पूरा की पूरा जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. आज अपन प्रोटिस्टा के अंदर ये दूसरी स्टेज है, तो ऑब्वियसली दूसरी स्टेज में जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर स्टडी करते हैं अपन, तो इसमें भी वो जो कल डिस्कस किए थे उसी 5 पॉइंट के बेस पे अपन वो चलते हैं. तो पहला ये सेलुलर लेवल वाला, तो कैसे है एक्चुअली इनके अंदर फीचर प्रोटिस्टा के अंदर जो पहला फीचर है प्रोटिस्टा के अंदर वो सेल वाला फीचर है. हाउ द सेल्स आर देयर इन देम, द सेल्स आर यूनिसेलुलर नो डाउट as likes to them, but the eukaryotic means in them in the cells there is a presence of the true nucleus is there. यू का मतलब होता है ट्रू, और इसमें जो है ऐसा कंप्लीट ट्रू न्यूक्लियस आप लोगों को इसमें दिखाई देगा. तो इसको बोलते हैं अपन यूकैरियोटिक. क्या बोलते हैं अपन इसको? यूकैरियोटिक. ये आप लोगों को इसमें दिखाई देगा ऐसे ट्रू न्यूक्लियस. दिस इज द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल्स आर नोन एज द यूकैरियोटिक सेल्स. तो ये जो यूकैरियोटिक सेल पहली इवोल्व स्टेज है. पहले वाले में प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लिक मटेरियल था, उसको अपन ने न्यूक्लाइड कह दिया था. अभी आज की स्टेज में थोड़ा सा सेल इवॉल्व हो गई, सेकंड स्टेप पे आ गई, जिसको अपन कौन से किंगडम के अंदर में डाल दिया है? प्रोटिस्टा के अंदर में डाल दिया है. तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द इवोल्यूशन इज द फॉर्मेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम दैट द प्रोकैरियोटिक सेल. दिस इज द थिंग्स आर देयर. All living beings are mostly the unicellular one, no doubt, but the cells are eukaryotic one. Second step of this or second character in this one is, how the second characters in this one is, as we know there is a cell wall present or not. दूसरा कैरेक्टर था सेल के अंदर में वो सेल वॉल वाला था. तो as it follows the characteristic features of all later comes kingdom Plantae, fungi and animalia. And we know in the Plantae there is a cell wall is present, in the fungi cell wall is present, but in animalia there is a cell wall is absent. Now as if suppose such type of the three groups are there and there may be the some presence of characters are there or not, as according to this in the unicellular eukaryotic prokaryotic protist there is a cell wall is present. Cell wall is present, but that cell wall is actually made up of a cellulosic substances like that of a plant. In them pectin, suberin, chitin, like fungi, chitin is there. इस हिसाब से उसके सेल्यूलोज के अंदर में केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं. मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को. ये हो गया दूसरा कैरेक्टर्स सेलुलोजिक स्ट्रक्चर वाला. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज हियर इन दिस वन मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला अपन ने कैरेक्टर लिए थे. As here we say this follows these three are there, means their mode of nutrition is autotrophic and heterotropic. Obviously दोनों चीजें होती है, जैसे अपन उसमें भी देखे थे ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक, वही कंडीशन इन प्रोटिस्टा के अंदर में है. मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कैसा है इसका? ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक नेचर का. ऑटोट्रॉपिक मतलब as you know in the plant there is a presence of green pigments
that is called as the chlorophyll pigment. They synthesize their own food in presence of light and chlorophyll in plant groups are there. So this is autotrophic in nature. Okay, autotrophic in what? The phototrophic nature. In fungi are actually the group of plants, but they can't have a colored pigments, or we call it the photosynthetic pigments. So for that they are totally depends onto the other plants, other organisms. So they are actually saprophytes. इन्हें क्या कहते हैं अपन? Saprophytes. कोई भी डेड रिमेन्स के ऊपर वो ग्रो होते हैं, तो ये saprophytes है, तो ऑब्वियसली दे आर द हेटेरोट्रॉप्स. वो कैसे हो गए? एक्चुअली हेटेरोट्रॉप्स में आता है. saprophytes बोले तो हेटेरोट्रॉप में आने वाले. और ऑब्वियसली वी नो ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर. They depends on to the others for their food. So in that the way, this group of the organisms, they are autotrophic in nature and heterotrophic in nature in their mode of nutrition. Clear this point? Now the next one is the mode of reproduction. कैसे है एक्चुअली? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. अगर रिप्रोडक्शन के तौर पर अपन देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो होती है इसमें असेक्सुअल भी है और असेक्सुअल भी है. सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों तरीका. असेक्सुअल का मतलब होता है विदाउट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. इसमें कोई गैमेट वगैरह होते नहीं. तो वो कैसा होता है प्रोटिस्ट में? प्रोटिस्ट में होता है, आपने एस्टरडे देखा था बाइनरी फ्यूजन वगैरह वगैरह तरीका या फ्रेगमेंटेशन. तो इसमें भी ऐसा है, बाइनरी फ्यूजन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, बडिंग होता है. इस हिसाब से इनके अंदर जैसे फंजाई में अपन इस देखते हैं तो बडिंग होता है. तो अलग अलग ढंग से होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बाय स्पोर फॉर्मेशन होता है, इसको अपन स्पोरुलेशन भी बोलते हैं. तो ये भी होता है. और प्लांट में देखा जाए तो सेक्सुअल होता है, एनिमल में देखा जाए तो सेक्सुअल होता है. मतलब दोनों तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है इन द ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट. क्लियर दिस पॉइंट? अब बात आती है वेयर दे फाउंड. दे आर आल्सो फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. आप जाओगे तो सभी जगह पे ये आपको पाया जाएंगे. इसमें एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है. सभी तरीके के कंडीशंस आप लोगों को इसमें पाए जाते हैं. किसके अंदर में? प्रोटिस्ट के. ये जनरल 4-5 कैरेक्टर्स आप लोगों को एज पर द ग्रुप मीन्स द किंगडम के मुताबिक यहाँ पे अपन ने लिए हैं, जिसके बेस पे ही ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिया गया है. नो अगर आप आगे बढ़ते हो तो आप लोगों को बताया मैंने कि ऑल यूकैरियोटिक किंगडम प्रोटिस्ट आर लाइक दैट ऑफ ए प्लांटी, फंजाई एंड एनिमल. ऐसे तो अपने को इसे सभी के कैरेक्टर देखना है. बट टुडे वी सी ओनली द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट आर देयर. अपने को आज की डेट में प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को ही देखना है. तो देखते हैं अपन जो भी प्रोटिस्ट प्लांट लाइक होते हैं इसे अपन क्राइसोफाइट्स द वर्ड विल बी चेंज हियर. क्रायोफाइट्स नहीं, क्राइसोफाइट्स ऐसा एक दूसरा शब्द है. तो ये ऐसे तरीके के होते हैं. व्हाट इट मींस दैट दे आर एक्चुअली फाउंड ऑल ओवर द environmental conditions are there. That is actually called as the chrysophytes. Now second thing is there, as per mode of nutrition, most of them those they like a plant that is photosynthetic, because we know in the plant there is a photosynthetic pigments like chlorophyll A, chlorophyll B, keratin and xanthophyll. So they are photosynthetic in nature. Means in their cells, as it may be the unicellular one, in their cells there is a presence of the photosynthetic pigments are there. इसलिए वहाँ पे अपन फोटोसिंथेसिस वाला तीसरा पॉइंट ले लिया अपन इसमें. माइक्रोस्कोपिक है मतलब यूनिसेलुलर है और फोटोसिंथेटिक है. नेक्स्ट कैरेक्टर है फाइटोप्लैंक्टन्स, मतलब जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन. इट वन लुक्स लाइक ए प्लांट, सो इट इज कॉल्ड एज द फाइटोप्लैंक्टन्स. इनको अपन ये कहते हैं कि ये प्लांट लाइक दिखाई देते हैं, प्लांट के कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, इसलिए इनको फाइटोप्लैंक्टन्स भी कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज दे आर एक्चुअली मेजरली प्रोड्यूसर्स आर देयर. क्या है ये एक्चुअली? प्रोड्यूसर्स. यू नो द 3 कंडीशंस आर देयर. मेजर वे से 3 कंडीशन आती है. इसमें है प्रोड्यूसर्स, उसके बाद में आते हैं कंज्यूमर्स. 2 मेजर हो गए. कंज्यूमर में आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स. इस ढंग से उसको कहा जाता है. तो इसका मतलब ये है कि दोज दे आर ऑब्टेनिंग देयर फूड इज नोन एज द प्रोड्यूसर्स. जो अपना खुद का अन्न खुद बनाते हैं उसको अपन प्रोड्यूसर्स कहते हैं. तो as it one is looks like a planty, then it one is obviously the producers, because plants they produce their own food, that is the carbohydrate in presence of light and chlorophyll by the use of chlorophyll pigment, chlorophyll A, chlorophyll B, keratin and xanthophyll. तो इसी हिसाब से इनमें भी वो सभी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, इसके लिए इसको अपन प्रोड्यूसर बोलते हैं. इन
most of them in ocean, because we know in the ocean there is a presence of most of the quantities of the protist are there. प्रोटिस्ट की जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है प्रोटिस्ट वाले, ये प्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स का एनिमल लाइक है, तो ये सभी ओशियन में पाए जाते हैं, तो ये भी उसका एक हैबिचुअल कैरेक्टर के तौर पर ले सकते हैं. नाउ इन देम वन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ द ओशियनिक phytoplanktons are the diatoms. Diatom is one of the plants like structures is there. These groups are actually called as the diatoms. Hello Moto. In them there is a structure of that the cells are actually diatomaceous structure as we write here, and as they are the diatomaceous structure, they makes a structure like earth in the oceans are there. So for that they use for polishing and filtration process are there. Polishing and filtration process में इसका यूज होता है. अब बॉडी वॉल का जो मैंने बताया था, their body wall is like that of a soap box. Means the as we know the soap box is there. अपने को मालूम है अपन जिसमें साबुन रखते हैं उसको soap box कहते हैं. तो इस हिसाब से उसका बॉडी वॉल है जो पोरस होता है थोड़ा सा, तो इसकी वजह से इसमें आने जाने वाला जो मटेरियल है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर इजीली होता है. और ये मोस्टली कैसे बना होता है? सिलिका से बना होता है. कैसे बना होता है? सिलिका से. मतलब बॉडी वॉल कैसे है? थोड़ा सा पोरस है, सचिद्र है, इधर उधर उससे मटेरियल को आना जाना होता है, इसलिए सोप केस बोलते तो अपन यहाँ सोप बॉक्स लिखा है, और वो सिलिका से बना होता है. इन दैट द वे देयर इज द मेनी मोर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दैट द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट आर देयर. सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दैट द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट आर हियर गिवन इन आवर बुक्स, particularly here that the diatoms are there. सभी diatoms, सभी diatomaceous group के पिगमेंट्स है, सॉरी ऑर्गेनिजम्स है, ये सभी इसके अंदर आते हैं प्रोटिस्ट के अंदर. ओके, थैंक यू वेरी मच.